Hello. Is it visible? Hello. Yes, sir, it's visible. Okay. So the topic of today's webinar is vaccine for COVID-19 and its effectiveness. आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर से दैट इज इन इंडिया मार्च 2019 से इंडिया में कोविड 19 पैंडेमिक मतलब पहले केस या फिर पेशेंट वहाँ पे मतलब मिल गया और उसके बाद 2020 में जो फर्स्ट वेव थी दैट वाज फर्स्ट वेव विच वाज स्टार्टेड इन March 2020 and from that is during September or October the cases of that COVID-19 cases COVID-19 patients in India that was decline, but from January again 2021 the cases of these COVID-19 patients these are on hike or they are tremendously increasing, and it is considered that this is the second wave of COVID-19 pandemic. And in India also that vaccines are given to the patients, that is to the persons or firstly to the that workers which are on front line, that includes doctors, nurses, then research scientists. So they are working for the research to find out the or for the treatment of patients of this COVID-19, and that's why that was very necessary to give on the vaccines to these persons first. So now there are so many vaccines are available in world, and in India also there are three vaccines are available, that is which are useful for the prevention of this COVID-19, and that three vaccines in India which are available. One is that is Bharat Biotech's that Covaxin, then later on Oxford and AstraZeneca's, and that is produced by the Serum Institute of India Limited, Pune, that is Covishield, and third vaccine is from that is imported from Russia, and that is Sputnik V. So these three vaccines are available in India, but throughout the world there are so many vaccines are there, and all these vaccines. So there are, if there are, now in India there are three vaccines are available, but that persons or pupils they are confused which vaccine is good for the prevention of this COVID-19 pandemic, whether it is Sputnik V, whether it is Covaxin, or whether it is Covishield. So that's why we are that doctor microbiologist, that is the initiative by these SY students, that is Devmita Sutar, she is from Kolkata, and she selected this topic, or we can say that this burning topic, that vaccines for COVID-19 and its effectiveness. क्योंकि वैक्सीन तो अवेलेबल है, कोविशील्ड वैक्सीन है, कोवैक्सीन वैक्सीन है, उसके बाद अभी इंडिया में स्पुतनिक वी भी आई है। तो इसमें से वैक्सीन कौन सी इफेक्टिव है, क्योंकि जब आपके सामने ऑप्शंस रहते हैं तो आपका कन्फ्यूजन वहाँ पे बढ़ जाता है। अगर एक ही वैक्सीन वहाँ पे रह जाती तो देयर वाज नो कन्फ्यूजन, क्योंकि एक ही वैक्सीन है तो आप मतलब ब्लाइंडली या फिर मतलब एक आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, तो यू हैव टू टेक दैट वैक्सीन ओनली नाउ। लेकिन अभी इंडिया में तीन वैक्सीन अवेलेबल है, पहले ऑलरेडी दो थे, दैट इज कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, और बाद में ये थर्ड वैक्सीन आया है। तो ऑप्शंस बढ़ गए, इसका मतलब वहाँ पे कन्फ्यूजन भी आपका बढ़ गया है। तो दैट इज नॉट डिपेंड ऑन यू कि यू विल चूज दिस स्पुतनिक वी और दैट कोविशील्ड और दैट कोवैक्सीन, which vaccine is available, that is given to you or to the persons to prevent this COVID-19। तो इसलिए ये टॉपिक यहाँ पे चूज किया है, and the name of that today's topic is here, vaccines for COVID-19 and its effectiveness। तो let's start। तो आज के इस वेबिनार में हम that we are going to see here what are these vaccines, because actually this is a very basic topic, because you learn what are these vaccines, you learn in first year, second year, or in third year some part of these vaccines. Then we will see types of vaccines, then we will see different brands of COVID-19 vaccines, because in market or in world there are so many brands are available for the prevention of this COVID-19 disease। then we will see structure of coronavirus, क्योंकि कौन सा भी मतलब इन केस ऑफ दिस COVID-19 पैंडेमिक, अगर कोरोना वायरस के अगेंस्ट आपको वैक्सीन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट उसका स्ट्रक्चर भी आपको समझा के लेना है। सो दैट वी विल सी इन शॉर्ट और इन ब्रीफ
structure of coronavirus. Then we will see types of COVID-19 vaccines. क्योंकि ये जो कोरोना वायरस के whatever this here second point third point we are going to see here, these are the types of vaccines according to the brand name. कौन से brands मार्केट में अवेलेबल है that we will see. और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स, क्योंकि कुछ जगह पे या फिर कुछ वैक्सीन्स ऐसे वायरल वेक्टर यूज करके वैक्सीन्स वहाँ पे तैयार किए गए कोविड-19 वैक्सीन्स, कहीं पे इनएक्टिवेट वायरस वहाँ पे यूज किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कोविड-19 वैक्सीन्स दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस टाइप्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स. देन वी विल सी व्हाट आर क्लिनिकल ट्रायल्स, क्योंकि जब वैक्सीन वहाँ पे मतलब डिस्कवर की जाती है तो दैट इज नॉट डायरेक्टली यूजिंग ऑन द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग के डायरेक्टली उसका यूज नहीं किया जाता, तो पहले वहाँ पे कुछ ट्रायल्स लेने पड़ते हैं. अगर वो ट्रायल सक्सेस हो गए या फिर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल गए, एट दैट टाइम ओनली और आफ्टर दैट दैट वैक्सीन्स आर गिवन टू द ह्यूमंस और टू द गिवन टू द लार्ज पॉपुलेशन, और दैट इज एक्चुअली टू द पर्सन्स. So that we are going to see here what are these clinical trials. Then next we will see that is effectiveness of COVID-19 vaccines. That we are going to see in general. कौन से वैक्सीन इफेक्टिव है या परसेंटेज कितना मतलब कितने परसेंट तक वो इफेक्टिव है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस कोविड-19. दैट वी विल सी. नेक्स्ट वी विल सी मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट कोविड-19 वैक्सीन. क्योंकि अभी जो वैक्सीन आए हैं, क्योंकि जनरली पीपल्स को या फिर हमें कॉमन मैन को क्या मालूम होता है कि कोई भी ड्रग अगर डिस्कवर होनी है, कोई भी वैक्सीन अगर डिस्कवर होना है तो एटलीस्ट या कम से कम 2 साल तो लगते हैं. लेकिन ये जो वैक्सीन आए हैं अभी मार्केट में कोविड-19 वैक्सीन दैट केम इन मार्केट विद इन 1 आवर ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक, मतलब 1 साल के अंदर ही ये पूरे वैक्सीन आए, तो डाउट वहाँ पे कॉमन पीपल का बढ़ जाता है कि इतने जल्दी वैक्सीन तैयार हो गए, इसका मतलब है इफेक्टिव है या नहीं है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्या. तो ये हम देखेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट दैट कोविड-19 वैक्सीन्स. सो दैट वी विल सी हियर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, व्हाट आर वैक्सीन्स. हेलो, एम आई ऑडिबल क्लियरली देवमिता? यस सर, यू आर ऑडिबल. हाँ, जब भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना या फिर मैसेज कर दो. हाँ ओके, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू. हाँ. So first we will see what are these vaccines. So vaccines, so the simple definition of vaccines is these are the live or killed suspension of a pathogen. Vaccine ये एक ऐसे सस्पेंशन है, एक तो वहाँ पे पैथोजेंस वहाँ पे यूज किया जाता है, लेकिन वो पैथोजेंस एक्टिव नहीं रहता, वो आइदर इट इज इनएक्टिवेटेड और इट इज किल्ड. और इट इज इनएक्टिवेटेड मीन्स हियर दैट इज द वीकन पैथोजन. Live attenuated, that particular pathogen is live but it is attenuated or it is weakened, मतलब उसको वीक किया जाता है. और वीक अगर पैथोजन हमारे बॉडी में अगर हम एज अ वैक्सीन करके ले रहे हैं तो वीक होने की वजह से वो डिसीज कॉज नहीं कर सकता, लेकिन हमारी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज कर सकती है एज अ फॉरेन करके. तो एज अ फॉरेन करके रिकॉग्नाइज करने के बाद उस वैक्सीन जब हमारे बॉडी में जाता है तो दैट विल इंड्यूसेस इम्यून रिस्पॉन्स और इट विल ट्रिगर्स आवर इम्यून सिस्टम सो दैट वैक्सीन कैन बी induces that immune response and therefore our body become ready to fight against that pathogen when it is entered in future. Okay, so that is the definition of this vaccine. So that vaccine, it is a, and sometimes that vaccine is, it is a killed vaccine or that pathogen is killed. कुछ कभी कभी जो वैक्सीन वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है या यूज किया जाता है वो किल्ड पैथोजन रहता है, मतलब पैथोजन तो है लेकिन उसे किल करके यूज किया जाता है. सो किल्ड होने की वजह से इट कैनॉट कॉज द डिसीज. किल्ड है तो डिसीज कॉज नहीं कर सकता है एज अ वैक्सीन लेने के बाद, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी उसे एज अ फॉरेन करके रिकॉग्नाइज करती है. एंड फॉरेन करके रिकॉग्नाइज करने के बाद बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स वहाँ पे इंड्यूस हो जाता है, एंटीबॉडीज वहाँ पे तैयार हो जाती है, एंड सो दैट आवर बॉडी बिकम रेडी टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन. So that vaccine, it is a biological preparation that improves our immunity to a particular disease. समझो यहाँ पे अभी कोविड-19 वैक्सीन हम ले रहे हैं, इसका मतलब है ये जो वैक्सीन यहाँ पे हम ले रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन, तो इट इज इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म और इट इज इन द वायरल वेक्टर फॉर्म. तो जब हमारे बॉडी में ये वैक्सीन हम ले रहे हैं, इसका मतलब ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जो है कोरोना वायरस का,
वही हम प्रिपरेशन हमारे बॉडी में ले रही है, और आफ्टर टेकिंग दैट वैक्सीन आवर बॉडी रिकॉग्नाइजेस दैट वैक्सीन और दैट एजेंट एज अ फॉरेन, और फॉरेन करके रिकॉग्नाइज करने के बाद हमारी बॉडी वहाँ पे एंटीबॉडीज तैयार करती है, चाहे वो कोविड-19 वैक्सीन हो, चाहे वो एनी अदर वैक्सीन हो. सो दैट ट्रेडिशनल वैक्सीन, क्योंकि अभी नए नए डेवलपमेंट वहाँ पे वैक्सीन प्रोडक्शन में हो रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज की जा रही है, लेकिन जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है, सो दैट ट्रेडिशनल वैक्सीन दैट कंटेन्स आइदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रोब्स और दैट होल माइक्रोब्स. ट्रेडिशनल वैक्सीन जो है वो एक तो पार्ट वहाँ पे माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, या फिर उस ऑर्गेनिज्म का पैथोजन या होल माइक्रोब्स और होल पैथोजन वहाँ पे यूज किया जाता है. दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ किल्ड सस्पेंशन or that may be in the form of that weakened suspension. So when persons they are inoculated with this preparation, that is in the form of vaccines, then that immune system confirms or confronts this that pathogen and or that immune system, and that induces the formation of antibodies in our body. So in future that body remembers that particular pathogen, though it is killed or though it is weakened. So that later in our life, when our body encounters with that real pathogen or active pathogen or live virulent pathogen, then our body recognizes, because already our body is ready to fight against that pathogen because we have taken that vaccine. So that's why when that real pathogen or virulent pathogen enters in our body in future, so our body now has the memory, because our body already familiar with that particular pathogen with the help of that vaccine, so that it will become ready and it immediately fight with that pathogen, so we cannot suffer from the disease. That is the actual principle behind this vaccination or immunization. तो ये actual principle है वहाँ पे, क्योंकि वैक्सीन जो दी जाती है या फिर हम लेते हैं, तो इसका एक ही प्रिंसिपल है, एक ही हमारा पर्पस है कि पहले से अगर फ्यूचर में कोई बॉडी वायरस हमारे बॉडी में एंटर हो रहा है, तो पहले से हमारी बॉडी हमें तैयार रखनी है या फिर हमारे बॉडी को हमें तैयार करना है, इसीलिए टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन. तो ये वैक्सीन अलग अलग है, क्योंकि जो वैक्सीन है ये अलग अलग प्रकार के वैक्सीन है. फॉर एग्जांपल वन इज लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन. सी दीज आर द टाइप्स ऑफ वैक्सीन हियर. वन इज लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, सेकंड वन इज इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन. ये जो इनएक्टिवेटेड वर्ड है ये वायरस के बारे में यूज किया जाता है, वायरल वैक्सीन के बारे में यूज किया जाता है, क्योंकि वायरसेस को हम किल्ड नहीं बोल सकते, बिकॉज दीज आर नॉट लिविंग नॉर लिविंग और नॉर दैट इज लाइव और किल्ड, बिकॉज दीज आर दी ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ दैट लिविंग. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ इनएक्टिवेटेड. So these are inactivated or killed vaccines, and third type of vaccines are there. These are called as toxides. जो examples है live attenuated vaccines का मतलब है, so these vaccines, as I told in the previous slide, these are the live or killed suspension of a pathogen. ये एक live और killed suspension है pathogen के. So here these pathogen, so live attenuated का vaccine का मतलब है कि these are the live pathogens, but these are weakened or these are attenuated. And examples है ऐसे vaccines के BCG जिसे कहते हैं Bacillus Comet Gorin, then typhoid that is oral vaccine, then oral polio vaccine, then yellow fever, measles, then rubella vaccine, mumps, chickenpox, influenza, then epidemic typhus. So all these are the live attenuated vaccines. उसके बाद है इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन्स. इनएक्टिवेटेड का मतलब है जो भी पैथोजन है उसे इनएक्टिवेट किया जाता है या फिर उसे किल्ड किया जाता है. तो दैट आर इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन्स. तो दे आर इनएक्टिवेटेड और दे आर किल्ड. दैट्स व्हाई व्हेन दे आर इंजेक्टेड और व्हेन सच वैक्सीन्स आर इंजेक्टेड इन द बॉडी, सो दे कैनॉट कॉज द डिसीज, because whatever that pathogen is here, it is inactivated pathogen or it is killed pathogen. But our body recognizes it as a foreign and it induces antibody formation against that particular pathogen. And examples include typhoid, cholera, pertussis, then cerebrospinal meningitis, plague, rabies, then Salk vaccine, that is of polio, then influenza, hepatitis B vaccine, hepatitis A vaccine,
then Japanese encephalitis. So all these are the inactivated or killed vaccines. And third type of vaccines are here. These are called as toxides. So there are many pathogens are there which are produces that toxins, and that toxins are responsible for the causation of disease. For example, if you take the example of diphtheria here or tetanus, so these are the names of diseases. Diphtheria, it is caused by the Corynebacterium diphtheria, and that tetanus, it is caused by the Clostridium tetani. So these diphtheria and tetanus, so these are the diseases caused by the toxin. So if we inject or if we inactivate that toxin, and this inactivated toxin, it is called as toxide. Inactivated toxin, it is called as toxide. So that toxide, now it is inactivated, and when these toxides are injected in the body, so that will induces the immune response in our body, and so that's why our body produces antibodies. And when in future that real bacteria or real toxin is enter in our body, so already our body is prepared, or already our body has the antibodies against that particular toxin that we have taken in the form of toxide vaccine or toxides. डिप्थीरिया या फिर टीटी का जो इंजेक्शन आप बोलते हैं, अभी आप सभी को पता है, जब भी मतलब कोई इंजरी आप यहाँ में होती है तो हम टीटी का इंजेक्शन लेते हैं. टीटी स्टैंड्स फॉर टिटेनस टॉक्साइड. So tetanus toxide, it is the one type of vaccine here. Actually, it is a toxides, or that tetanus toxide or TT. It means it is inactivated tetanus toxin. So it is called as toxide. So that are taken. So these are the three vaccines: live attenuated vaccines, then inactivated or killed vaccines, and toxides. Next, that is the difference between these live attenuated and killed vaccines. So this is the characteristics or feature. So duration of immunity in case of attenuated vaccine, it is long lasting, so that the immunity, if you have taken attenuated vaccine, then live attenuated vaccine, then the immunity for in such cases it is for longer duration. And in case of inactivated or wholesale vaccines, it is for short duration. Then type of immune response, in case of live attenuated vaccine, both type of immune response is there. That is humoral immune response as well as cellular. Humoral immune response means it is that is antibody mediated, and cellular means here that is because of the T cells or thymus cells here or T cells. So that is both type of immune responses will be produced in case of live attenuated vaccines. And in case of that inactivated whole cell vaccines, that is humoral, that is antibody mediated immune response. Then adjuvant required, there is no requirement adjuvant in case of attenuated vaccines, and it is required in case of inactivated whole vaccines. The number of inoculations or booster doses which are required in case of attenuated vaccines, single dose will be sufficient to induce the immune response or to prevent that pathogen in future also. Then in case of inactivated wholesale vaccines, multiple doses will be required. Then route of inoculation, parenteral or mucosal, and mostly parenteral. Then reversion of virulence. Reversion of virulence मतलब यहाँ पे, क्योंकि जो वैक्सीन हम ले रहे हैं यहाँ पे, एक तो जो पैथोजन है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, वो कैसा है, इनएक्टिवेटेड है या फिर अटेन्यूएटेड है, वीक है. लेकिन कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि ये जो वीक पैथोजन वो फिर से स्ट्रांग बन जाता है हमारे बॉडी में, और जब वो स्ट्रांग बन जाएगा तो डेफिनेटली इट कैन कॉज डिसीज. तो दिस रिवर्जन ऑफ वायरुलेंस it is possible in case of attenuated vaccine, and in case of inactivated wholesale vaccine there is no possibility of that reversion of virulence. Then adventitious contaminants possible, no possibility. Then stability requirement of cold chain, मतलब whether there is a low temperature will be required for preservation or not. अभी जो हम देख रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन, तो उसे ट्रांसपोर्टेशन जो किया जा रहा है वो लो टेम्परेचर में किया जा रहा है. We have seen that. एंड जब भी हम सेंटर पे वहाँ पे पीएचसी में जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, तो वहाँ पे भी जो प्रिजर्वेशन किया जाता है वैक्सीन का, कोविड-19 वैक्सीन का, वो लो टेम्परेचर पे है. तो स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ कोल्ड चेन, यस इट इज, दैट इज लेस रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन, एंड कोल्ड चेन इज, स्टेबिलिटी इज लेस एंड कोल्ड चेन इज रिक्वायर्ड. देन इन केस ऑफ इनएक्टिवेटेड होलसेल वैक्सीन, स्टेबिलिटी इज मोर एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोल्ड चेन और लो प्रिजर्वेशन, low temperature. Then administration in pregnant woman is
that is recommended or not. So in case of attenuated vaccines, not recommended, and in case of inactivated whole cell vaccines, so that can be given to the pregnant women also. So this is about the difference between live and killed vaccines. See, the next point we will see here, that is types of vaccines. टाइप्स कौन से एक तो यहाँ पे मैंने बताया किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. वहां पे जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं वो है होल पैथोजन इज यूज्ड हियर एंड द इम्यून रिस्पांस आफ्टर टेकिंग ऑफ दिस लाइव दैट इज किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, whatever that immune response is in our body, that is in the form of antibody production, and that antibodies which are produced here after taking that particular killed or inactivated vaccine, that includes immunoglobulin M or immunoglobulin G. These are nothing but the antibody M or antibody G, we can say that here. Then when toxides, so this is the another type of vaccine here, toxide, so it is inactivated toxin, and the antibodies which are produced, that includes IgM or IgG. Then conjugated vaccines, so there is a conjugation of that carbohydrates and proteins here, so that is in the, so that conjugated vaccines, these are present in the form of this complex, and the immune response that includes production of IgM and IgG. Then RNA or nucleic acid material, so there is a use, instead of using whole pathogen, there is a use of only RNA or nucleic acid or DNA here. For example, here viral mRNA in lipid nanoparticles. So here these lipid nanoparticles, they act as a carrier for the carrying of this particular pathogen. Okay, and here that immune response, it is in the form of IgM and IgG, and also in the form of cell-mediated immunity. Then live or attenuated vaccine. Live or attenuated vaccines, live, that pathogens are live, but these are attenuated or these are weakened or these are weak. So these weakened viruses here, and that immune response, it is in the form of IgM, IgG and IgA, and that induces cell-mediated immunity. Okay, so these are about types of vaccines. So here in short I will explain these, all these things here. One is, the first type is here live attenuated vaccines. So that such vaccines, live attenuated vaccine, now you know what are these live attenuated means. So these live attenuated vaccines, these are produced in different ways, and generally that method involves passing of this pathogen or virus, for example virus or any pathogenic bacteria, and it is passes through a series of cell culture. If you are preparing the vaccine, live attenuated vaccine against viral diseases, then that viruses, these are passes through a series of culture, मतलब सेल कल्चर्स के थ्रू इसे पास किया जाता है फॉर मेनी टाइम्स. और देयर इज अ यूज ऑफ चिक एम्ब्रियो. चिक एम्ब्रियो भी, क्योंकि वायरसेस एक ऐसे मटेरियल वी कैन से हियर और एजेंट्स है, बायोलॉजिकल भी हम बोल सकते हैं उसे, कि जैसे हम बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं लेबोरेटरी में, वायरसेस को हम लेबोरेटरी में ग्रो नहीं कर सकते. उसे दूसरी कोई ना कोई लाइव सेल चाहिए. एट दैट टाइम ओनली दे कैन ग्रो, दे कैन मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे हम एक तो सेल कल्चर्स यूज कर रहे हैं वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए, या फिर यहाँ पे चिक एम्ब्रियो यूज कर रहे हैं. तो अगर हमें लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाना है वायरस के खिलाफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला एक स्टेप क्या है उसमें, तो वी हैव टू पास दिस डिसीज कॉजिंग वायरस थ्रू मेनी सेल्स और मेनी एम्ब्रियोज. एंड यूजिंग दिस चिक एम्ब्रियोज एज एन एग्जांपल, दैट वायरस इट इज ग्रोन इन डिफरेंट एम्ब्रियोज इन अ सीरीज. अलग अलग चिक एम्ब्रियोज पे उसे ग्रो किया जाता है, एंड विथ ईच पैसेज, मतलब जब आप उसे ट्रांसफर करोगे फर्स्ट चिक एम्ब्रियो टू सेकंड चिक एम्ब्रियो, सेकंड चिक एम्ब्रियो टू थर्ड चिक एम्ब्रियो, और थर्ड चिक एम्ब्रियो टू अनदर और फोर्थ चिक एम्ब्रियो, तो एट दैट टाइम दैट वायरस इट बिकम्स बेटर इन रेप्लिकेशन की जो उसकी कैपेसिटी वो अच्छी बन जाएगी, लेकिन इट लूजेस इट्स एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन ह्यूमन सेल्स. मतलब चिक एम्ब्रियो में उसका रेप्लिकेशन अच्छी तरह से हो जाएगा, लेकिन ह्यूमन सेल में रेप्लिकेट होने की जो उसकी कैपेसिटी है तो वो लूज हो जाएगी. मतलब यहाँ पे दैट वायरस इट विल लूजेस इट्स कैपेसिटी टू रेप्लिकेट इन ह्यूमन सेल्स व्हेन वी पासेस दैट वायरस थ्रू ए सीरीज ऑफ मेनी चिक एम्ब्रियोज और थ्रू ए सीरीज ऑफ मेनी सेल कल्चर्स. तो इसी तरह से उसकी जो रेप्लिकेशन एबिलिटी है, कैपेसिटी है, दैट विल बी लूजेस.
The virus targeted for use in vaccine may be grown through a passage through upwards of 200 different embryos or cell cultures. मतलब 200 तक सेल कल्चर या एम्ब्रियोज से उसे पास किया जाता है and then we can use that or that virus for a vaccine preparation. Okay, so all of the methods that involve passing this virus through a non-human host and that will produces the version of that virus which can be recognized. मतलब अभी ये जो वायरस को हम पास कर रहे हैं that is in chick embryo or in cell cultures. We are not passing that virus in a host cells or human cells. फिर भी हमारे बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में और ह्यूमन इम्यून सिस्टम में एक एबिलिटी वहाँ पे रहती है कि दो दैट वायरस इज नॉट पासेज थ्रू द ह्यूमन सेल्स बट आवर बॉडी हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दैट वायरस एज अ फॉरेन पार्टिकल और एज अ फॉरेन और एज अ एंटीजन एंड दो इट कैनॉट रेप्लिकेट इन द ह्यूमन सेल. सो दिस एंड नाउ व्हेन दैट वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड, अभी इसी तरह से ये जो वायरस है पार्टिकल्स है उसे चीक एम्ब्रियो से या फिर जब कंप्लीट मतलब 200 to 300 तक पास करने के बाद नाउ दैट कैन बी यूज्ड एज अ वायरल प्रिपरेशन वैक्सीन प्रिपरेशन एंड व्हेन रिजल्टिंग वैक्सीन वायरस इट इज गिवन टू द ह्यूमन. सो नाउ as I told in last slide, it is unable to replicate in human, but and it is also unable to cause the illness. मतलब वो डिसीज भी कॉज नहीं कर सकता, ह्यूमन सेल में उतनी अच्छी तरह से रेप्लिकेट भी नहीं हो सकता. अगर रेप्लिकेट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली द नंबर ऑफ दैट वायरसेस और दैट वायरल पार्टिकल्स इट विल बी वेरी लेस. अगर नंबर कम है तो दैट कैनॉट कॉज द डिसीज, तो डिसीज कॉज नहीं करेगा. लेकिन our body can recognize it as a foreign and that's why it will provoke or it will induces immune response against that particular pathogen or against that particular infection. अगर immune response वहाँ पे माउंट हो गया तो इसका मतलब है वहाँ पे एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे. दैट मीन्स आवर बॉडी इज नाउ रेडी टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन. अगर फ्यूचर में वही पैथोजन एक्टिव स्ट्रॉन्ग पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर हो रहा है तो ऑलरेडी हमने वैक्सीन ली है. दैट्स व्हाई आवर बॉडी इज रेडी टू फाइट अगेंस्ट दैट पैथोजन. तो इमीडिएटली आवर बॉडी फाइट्स दैट पैथोजन एंड वी गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट डिसीज. So this protection from live attenuated vaccine, it is last for longer duration, which is provided by the killed or inactivated vaccine. Second type है killed or inactivated vaccine. So these vaccines, these are created by inactivating that pathogen or by killing that pathogen. So that inactivation of that pathogen, it can be done by using heat. It can be done by using some chemicals, for example, formaldehyde or formalin. And this inactivation of that pathogen, it destroys the ability of that pathogens to replicate, but it remain intact, and so that our immune system, it will recognize that pathogen when we taken as a vaccine. जब आप एज अ वैक्सीन करके लेंगे तो हमारी बॉडी उसे एज अ फॉरेन पार्टिकल करके रिकॉग्नाइज करेगी एंड दैट विल बी द सेम मैकेनिज्म फर्दर. तो इट विल induces antibody production or it will induces the immune response. So that is the killed or inactivated vaccine. Next है toxoids. So as I told in previous slide that some bacterial diseases, these are not directly caused by the pathogen. Directly वो pathogen वहाँ पे responsible नहीं होते disease cause करने के लिए. Instead of that, that toxin is produced by the pathogen and that toxin actually it is responsible for the causation of disease. Example है tetanus disease. So that tetanus, it is caused by the Clostridium tetani, that is a one bacterium, and this Clostridium tetani actually it is not responsible for the tetanus, but the toxin which is produced by Clostridium tetani, that is called as tetanospasmin. So this is the name of toxin which is a neurotoxin. That is this toxin produced by Clostridium tetani, it affect nervous system. So it is that tetanospasmin, it causes the tetanus, and now this toxin, it is inactivated, and that will causes the or that will does not cause the symptoms. So this inactivated toxin, it is called as toxoid. यही inactivated toxin को हम क्या बोलते हैं, toxoid बोलते हैं. और when we take that toxoid, जैसे कि हमें टीटी का इंजेक्शन मालूम है, टिटेनस टॉक्साइड, टीटी का इंजेक्शन जब हम लेते हैं तो we are taking that inactivated toxin. हम
इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन हमारे बॉडी में ले रहे हैं और इनएक्टिवेटेड होने की वजह से वो डिसीज कॉज नहीं कर सकेगा, लेकिन हमारी बॉडी उस इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को मतलब टॉक्साइड को एज अ फॉरेन करके रिकॉग्नाइज करेगी एंड उसके खिलाफ वहाँ पे एंटीबॉडीज तैयार करेगी. तो दैट विल प्रोड्यूसेस द immune response and we get protected from the disease or that pathogen if it is entering in our body or if that toxin is entering in our body in future. So that is toxoids. Next है subunit and conjugated vaccine. So these subunit as well as conjugated vaccines, these are the types of pathogens they protect against that particular disease. And these subunit vaccines, they use only part of a target pathogen. जैसे पहले हमने यहाँ पे देखा है दो टाइप्स में, एक्टिवेटेड एंड इनएक्टिवेटेड में, या फिर किल्ड लाइव एंड अटेन्यूएटेड और किल्ड एंड इनएक्टिवेटेड में वहाँ पे होल ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं. लेकिन सब यूनिट और कॉन्जुगेट वैक्सीन में क्या किया जाता है कि वैक्सीन तो प्रिपेयर वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट होल पैथोजन देयर इज अ यूज ऑफ सम पार्ट ऑफ दैट पैथोजन और देयर इज अ यूज ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम द पैथोजन and that pathogen it is presenting on the antigen as an antigen. उस पार्ट को, उस प्रोटीन पार्ट को या फिर पर्टिकुलर पार्ट को एज एंटीजन करके प्रेजेंट कर रहे हैं एंड व्हेन दैट एंटीजन वी आर टेकिंग इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ दिस सब यूनिट एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन. सो अगेन आवर बॉडी उसे क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी एज अ फॉरेन करके, मतलब हमारी बॉडी होल ऑर्गेनिज्म को भी रिकॉग्नाइज करेगी एज अ फॉरेन करके एंड उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर पार्ट को भी एज अ फॉरेन करके रिकॉग्नाइज करेगी. एंड जब एज अ फॉरेन करके रिकॉग्नाइज करेगी हमारी बॉडी, तो उस वक्त वहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो जाएगा. सो दैट मीन्स आवर बॉडी बिकम रेडी टू फाइट अगेंस्ट दैट पैथोजन व्हेन इट इज इफ इट इज एंटर्ड इन अ फ्यूचर. सो नाउ लेटर ऑन, so there another type of subunit vaccine is here that can be created or that can be produced by the genetic engineering. So यहाँ पे ये कुछ वैक्सीन है, cellular pertussis vaccine and influenza vaccine. These are the examples of subunit vaccine. Or another method is here to produce that subunit vaccine, and that is by genetic engineering or that is by using recombinant DNA technology. That is by using recombinant DNA technology. So here, when that gene which is actually responsible for the coding for that particular part or protein, क्योंकि अगर उस पैथोजन में कोई प्रोटीन तैयार हो रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे that gene is present. So that gene is isolated and that particular gene which is responsible for the production of vaccine protein that is inserted into the another virus. तो दूसरे वायरस में इंसर्ट किया जाता है उसका, या फिर that is inserted into the cells in culture, या फिर सेल्स में इंसर्ट किया जाता है. अगर वो जीन सेल्स में इंसर्ट किया है, वायरस में एंटर किया है, now that virus or that particular cells they are able to produce that protein, so that will be produced by that cell or that virus. अगर वो प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि हमें उसे सब यूनिट वैक्सीन में लिया है, which is produced by genetic engineering, which is produced by recombinant DNA technology. Okay, so when that viral particle that is a carrier or that cells we taken inside our body as in the form of protein that vaccine, then our body will recognize that antigen as a foreign and that will induce immune response. तो वहाँ पे immune response induce हो जाएगा. So that recombinant vaccine includes, so another type, so that is called as the recombinant vaccine, and that immune system will recognize that express protein and provide the protection in future against that target virus or the target bacterium. Examples of recombinant vaccine includes that hepatitis B vaccine and that is human papilloma virus vaccine, HPV. Okay, so this human papilloma virus vaccine and this hepatitis B vaccine, these are the examples of recombinant vaccines. So these HPV vaccines, these are available in two different forms. That is one is the these proteins, these are expressed, that is called as virus-like particles or VLPs, and these virus-like that is particles, they contain no genetic material from the virus, so they don't cause the illness, but they can induce immune response, and therefore that person taking that vaccine will be protected against the infection from this human papilloma virus. Okay, so this is about the type here.
So that conjugate vaccine, these are similar to recombinant vaccines, and they are using can be produced by two different components. That conjugate vaccines. So here that is related to the conjugate vaccines here or that recombinant vaccines. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे दैट इज नाउ जैसे हमने अभी ये हो गया बेसिक पार्ट वैक्सीन के बारे में. अभी मार्केट में कोविड-19 के अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है, अलग अलग वैक्सीन अवेलेबल है. तो ये कौन से ब्रांड्स है, कौन से वैक्सीन है मार्केट में. सो फ्यू वैक्सीन आई एम टेकिंग हियर, फ्यू एग्जांपल्स आई एम टेकिंग हियर बिकॉज देयर आर सो मेनी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट we are familiar with some few names that I am taking here. For example, that Pfizer BioNTech vaccine. So this Pfizer, this is the name of that vaccine here, COVID-19. This is not using in India. So that Pfizer, it is produced by these companies here. These are the manufacturers, Pfizer company, then BioNTech company, and this type of vaccine, it is the mRNA vaccine. So I will explain what are these mRNA vaccines, but just this Pfizer vaccine, it is a mRNA vaccine, and the doses or number of shots which are required to develop the proper immunity against COVID-19, that includes 2 shots or 2 doses, and the gap between these 2 doses, it should be 21 days. ये जो Pfizer वैक्सीन दिए जाते हैं अदर कंट्रीज में, तो वहाँ पे 2 डोज, यहाँ पे जैसे हमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 2 डोज चाहिए, उसी तरह से ये जो फाइजर वैक्सीन है इसके भी 2 शॉट्स लेने चाहिए या फिर 2 डोसेस लेने चाहिए. और इसमें जो गैप है ये 2 डोसेस का बिटवीन दिस 2 डोसेस, दैट शुड बी 21 days. ओके. देन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग, हाउ इट इज गिवन, इट इज इन मसल्स ऑफ द अपर आर्म. साइड इफेक्ट्स क्या है, हर एक वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, चाहे जो हमने बचपन में पोलियो वैक्सीन लिए या फिर कौन सा भी वैक्सीन हमने लिया है, तो हर एक का वहाँ पे मतलब देयर इज अ साइड इफेक्ट्स आर देयर. जस्ट 1 minute, आई विल बिकॉज चार्जिंग इज लेस हियर, आई विल टेक चार्जर हियर. Just 1 minute. Okay. So this is the one Pfizer vaccine. So हर एक वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है. जैसे अभी हमने कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन के बारे में हमने मतलब सुन रहे हैं, अभी आप में से कुछ ने वैक्सीन लिया है, तो आपने भी जो साइड इफेक्ट्स मतलब इन द सेंस कुछ रिएक्शंस वहाँ पे मतलब माइल्ड रिएक्शंस वहाँ पे हो जाती है, चाहे वो पेन, रेडनेस और स्वेलिंग और माइल्ड फीवर विल बी देयर एंड बॉडी पेन और बॉडी एक. तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हम कह सकते हैं या फिर कुछ माइल्ड रिएक्शंस कह सकते हैं. तो फाइजर में भी ऐसे कुछ माइल्ड रिएक्शंस है जहाँ पे पेन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, एंड इफ इट इज टेकन इन द आर्म एंड इफ इट इज इंजेक्टेड इन द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, then there will be tiredness, headache, muscle pain, chills, fever और nausea. तो ये symptoms और ये mild symptoms वहाँ पे आ जाएंगे. So अगर हम effectiveness देखेंगे इसका कोविड that is Pfizer vaccine का, so there is a based on evidences from the clinical trials. This Pfizer BioNTech vaccine, it is 95% effective. तो मतलब 95% इफेक्टिव है, इसका मतलब ये बहुत अच्छा रिजल्ट है फाइजर वैक्सीन का. क्योंकि अभी जो हम कंपेयर करेंगे अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो वैसे कोविशील्ड का भी रिजल्ट अच्छा है, मतलब अप टू 72 to 80% कोविशील्ड का इफेक्टिवनेस वहाँ पे है, और कोवैक्सीन का उससे ज़्यादा है, 80 to 90% है, और वी कैन से 78% वहाँ पे, मतलब कुछ जगह पे जो फिगर्स है वहाँ पे चेंजिंग है. लेकिन फाइजर का जो इफेक्टिवनेस है वो 90% है, 95% इफेक्टिव है, एंड एट प्रिवेंटिंग दिस लेबोरेटरी कंफर्म कोविड-19 इलनेस इन पीपल विदाउट एविडेंस ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन. मतलब ये जो स्टडी की गई है, ये ऐसे ट्रायल्स लिए गए, ऐसे पर्सन्स पे लिए गए हैं जो कि पहले उन्हें कोई भी कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, एंड मतलब दैट वाज द फर्स्ट. So this vaccine they are given to such persons, and
in such peoples, in such trials, the effectiveness of this Pfizer vaccine, it is about 95%. Okay, so these are the points to remember. मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन सा भी वैक्सीन, चाहे वो फाइजर हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो, लेकिन हमें कुछ, अगर हम वैक्सीन ले रहे हैं तो हमें कुछ ध्यान में रखना है कि कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हमें है क्या, एलर्जिक रिएक्शंस अगे है तो दैट वी हैव टू अवॉइड दैट वैक्सीन। या फिर हमें पहले डोज, क्योंकि मालूम नहीं था कि हमें एलर्जी है या नहीं, लेकिन पहले वैक्सीन में अगर कुछ, पहले डोज में अगर कुछ एलर्जिक रिएक्शन आपको हो रही है तो we have to avoid the second dose of that particular vaccine. Okay, or you have to consult with your doctors. See, this was about the Pfizer vaccine. That is the first brand. The second vaccine we are hearing also here, that is Moderna. So this Moderna vaccine, it is produced by this Moderna TX-ins. This is also that is named mRNA, and the number of shots or doses which are required, that is 2 doses will be required, and the gap will be one month or near about 28 days. Then method of administering this Moderna vaccine, this is given in the muscles of the upper arm. Then side effects includes pain, redness, swelling. वैक्सीन जनरली कौन सा भी हो, उसके साइड इफेक्ट्स या फिर जो रिएक्शंस आती है वो जनरली सेम रहती है। ओके, देन इफ इंजेक्टेड इन द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, सो देयर विल बी टायर्डनेस, हेडेक, देन मसल पेन, चिल्स, फीवर और नॉजिया। सो ये साइड इफेक्ट्स रहते हैं कौन से भी वैक्सीन में, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो। तो आपका, जब आपने, आप में से किसी ने अगर लिए तो आपने भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है, और मैंने ऐसा भी सुना है कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों को कुछ भी रिएक्शन या फिर माइल्ड पेन वगैरह, रेडनेस, स्वेलिंग कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, जब मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लिए 30 अप्रैल को मैंने फर्स्ट डोज लिया है, तो मतलब दोपहर को मैंने वो डोज लिया था, फर्स्ट डोज, एंड ड्यूरिंग नाइट I have experienced that body pain and mild fever. लेकिन एक ही दिन था वो, दूसरे दिन जो टैबलेट्स उन्होंने दिए थे, मतलब वो तो लिए थे मैंने, फिर भी वहाँ मुझे बॉडी पेन भी हुआ है, बॉडी एक भी हुआ है, एंड फीवर भी था थोड़ा सा। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो इसका मतलब है कि मतलब सभी को ये एक्सपीरियंस आता है। एंड ऑकरेंस ऑफ सच सिम्टम्स, अगर वैक्सीन लेने के बाद हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, या फिर वैक्सीन जहाँ पे दी गई वो एरिया रेड हुआ है, अगर स्वेलिंग वहाँ पे है, या फिर फीवर है, तो इसका मतलब है आवर बॉडी इज गिविंग रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर वैक्सीन। तो ये अच्छी बात है। और कुछ सिम्टम्स नहीं दिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन को हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, वो भी नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि चलो सिम्टम्स मतलब कुछ ना कुछ दिख रहे हैं, इसका मतलब है आवर बॉडी इज गिविंग रिस्पॉन्स टू द दैट पर्टिकुलर वैक्सीन और दैट पर्टिकुलर दैट वैक्सीन फॉर एग्जाम्पल, यार चाहे वो रिस्पॉन्स कौन से भी फॉर्म में हो। तो ये एक मतलब है, अगर कुछ पर्सन को वहाँ पे सिम्टम्स नहीं दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बॉडी उस वैक्सीन को रिस्पॉन्स नहीं दे रही करके। तो ऑलरेडी आवर बॉडी कैन रिकॉग्नाइज दैट एंटीजन एज अ फॉरेन एंड इट विल प्रोड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपने किसी ने वैक्सीन ली है या फिर आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला हो, तो इसका मतलब, तो सर ने बताया कि रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसका मतलब हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो चलो दूसरा डोज और एक डोज लेंगे, ऐसा मत सोचो कभी। ओके, तो दैट इज केस। So this is the same points here you have to remember if there are allergic reactions. So here that clinical trials are done here, and that vaccines this is appear to have high effectiveness. So here also it is effective against that COVID-19 virus or that coronavirus. Next one is here, next brand or vaccine name is here Johnson and Johnson's Janssen vaccine. So this is the name of that vaccine here, Janssen, another brand. So it is manufacturer is a Janssen pharmaceutical companies, that is of Johnson and Johnson type of vaccine. It is a viral vector. पहले दो वैक्सीन मैंने बताए थे वो mRNA वैक्सीन थे, मतलब वहाँ पे mRNA यूज किया था। That mRNA that will guide our body cells to produce that particular protein or spike protein, जो कोरोना वायरस पे आपने देखा है, स्ट्रक्चर में हम देखेंगे बाद में, क्योंकि वो स्पाइक प्रोटीन एक्चुअली कल्प्रिट है जिसकी वजह से वहाँ पे हमारे बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड होता है या फिर मतलब सीरियस हो जाता है। तो दैट इज दे, तो इसीलिए
तो ये जो वैक्सीन है दैट इज जॉनसन एंड जॉनसन की जॉनसन वैक्सीन, तो इट विल induces or it will that vaccine, so here it is a viral vector vaccine, okay, and the number of shots which are required here, that is a single dose will be sufficient to induce that immune response. Then method of administering, these are in the given in muscles of the upper arm. Then side effects or that symptoms include mild symptoms, pain, redness and swelling. Then if it is injected in the rest of our body or other parts of the body, that is it causes tiredness, headache, muscle pain, then chills, fever or nausea. Okay, so this is about the same, the effectiveness of this जॉनसन एंड जॉनसन के जॉनसन वैक्सीन का जो इफेक्टिवनेस है वो 66.3% है, दैट इज इन क्लिनिकल ट्रायल्स. ओके, सो दैट इज इफिकेसी. इफिकेसी का मतलब है इफेक्टिवनेस एंड इफिकेसी, इसमें डिफरेंस है. क्योंकि इफेक्टिवनेस हम कब बोलते हैं कि जब ये वैक्सीन सब क्लिनिकल ट्रायल्स होके मार्केट में अवेलेबल है एंड इट इज गिवन टू द जनरल पॉपुलेशन. क्योंकि ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं ये वॉलंटियर्स पे किए जाते हैं. ओके, तो उसे हम इफिकेसी बोलते हैं. जब वो वैक्सीन का जो मतलब वो अच्छी है या नहीं ये जब चेक किया जाता है, जिसे हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं, एंड उसका जो रिजल्ट वहाँ पे आ जाता है उसे हम इफिकेसी कहते हैं. एंड जब इफेक्टिवनेस जो है अगर वो जनरल पॉपुलेशन में यूज किया जा रहा है वो वैक्सीन एंड वहाँ पे अगर उसकी अच्छे रिजल्ट है तो उसे हम इफेक्टिवनेस कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे जो इफेक्टिवनेस है वो है 66.3% इन केस ऑफ दिस क्लिनिकल ट्रायल्स, एंड दैट इज सेम इन द जनरल पॉपुलेशन आल्सो. ओके, सो दिस इज अबाउट द दैट जॉनसन वैक्सीन. एंड द नेक्स्ट वन इज हियर. सो दैट वैक्सीन्स मेक इंडिया प्राउड, एंड दैट वैक्सीन्स इंक्लूड्स द, because these are the Indian vaccines or made in India we can say here, that vaccines, one is the Covishield of this Serum Biotech, Serum Institute of India Limited, and second one is here Covaxin, that is manufactured by the Hyderabad based company, that is Bharat Biotech. That Serum India Institute, it is Pune located, or it is from Pune, and this Bharat Biotech, it is from Hyderabad. So both of these company that vaccines, these are made in India. One is in Pune, that is Covishield, and another one is Covaxin, that is in Hyderabad, Bharat Biotech. So these see, if you see the efficacy of this Covishield vaccine, Covishield and Covaxin. So this Covishield, it is about 70.42%, and Covaxin actually it is 78%. So that Covaxin, it has more effectiveness, 78% or more than that, and doses required in both cases, 2 doses will be required. For example, in Covishield 2 doses will be required, and in Covaxin that there is also requirement of the 2 doses. Then storage temperature 2 to 8 degrees Celsius, and in Covaxin also that storage temperature it is 2 to 8 degrees Celsius. So here that Covishield vaccine, which is produced by the Serum Institute of India, Pune, and it is produced this vaccine by using this recombinant chimpanzee adenovirus vector vaccine. So it is a viral vaccine, viral vector vaccine. And another one is here, that is Bharat, which is produced by the Bharat Biotech, that is Covaxin. It is a full virion inactivated coronavirus vaccine. Just see the difference here. See, there is a use of adenovirus vector for production or manufacturing of this Covishield vaccine, and for the production or manufacturing of that Covaxin vaccine, there is a use of this whole virion, but it is inactivated. Okay, we are not saying here killed, because virus it is alive or it is non-living, we can say here. So it is inactivated, and that is included or produced in case of this Covaxin. So these are the India-made vaccines which make India proud. That is Covishield and Covaxin. So this is the difference between Covishield and Covaxin. So that Covishield, it is developed by the University of Oxford and AstraZeneca, and it is locally manufactured in India by Serum Institute of India Limited, which is this company is located in Pune. That Covaxin, it is developed by the Hyderabad-based company, that is Bharat Biotech, and it is in collaboration with Indian Council of Medical Research, and that Pune-based company,
that is National Institute of Virology or NIV. Then Covishield, it is a recombinant COVID-19 vaccine. It is based on the viral vector technology, which uses the chimpanzee adenovirus. And this Covaxin, it is a whole inactivated COVID-19 vaccine, and that is developed from the Indian strain of novel coronavirus, and it is made using the dead viruses, that is inactivated. Okay. Then the number of doses in each vial, it will consist of 10 doses, and Covaxin, in case of Covaxin, that vial it consists of 20 doses. Then efficacy, if I am saying efficacy here, it goes up to 90% when there is a gap of more than 28 days between the doses. And in case of Covaxin, an average efficacy of 60 to 70% based on the phase 3 clinical trials. Okay. And next one, which is also now available in India, and that is the Sputnik V, which is a developed in Russia. So this Sputnik V, this V, it is not 5, it is a V number, okay, V alphabet. That Sputnik V, it is a viral vector vaccine, which is developed by the Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology. So it is registered on 11th August 2020 by the Russian Ministry of Health as a COVID vac, or that is called as this Sputnik V. And this was actually a first vaccine against this COVID-19 pandemic or COVID-19 disease. Okay. So this was about the different types of brands which are available in the market throughout the world. See, this is one short video is here, which that is now the which can be seen, which we can see as a game changer. We can see here as a game changer, and this is about the nasal vaccines. Just the next point is here, that is about the structure of coronavirus. So in brief we will see here, that is structure of coronavirus. जो वीडियो है मैं बाद में ग्रुप पे पोस्ट करूंगा वो वीडियो, क्योंकि दैट विल बी द गेम चेंजर, क्योंकि अभी जो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं वो इंजेक्टेबल वैक्सीन है. ओके. लेकिन ये जो वीडियो यहाँ पे मतलब रिसर्च किया गया है वैक्सीन की अभी ये कोविड-19 पैंडेमिक में, तो ये नेजल वैक्सीन का है. ओके. तो दैट विल आई विल पोस्ट दैट वीडियो ऑन द ग्रुप. ठीक है. सो हियर नेक्स्ट वन पॉइंट इज हियर, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस. क्योंकि अभी वैक्सीन तो हम ले रहे हैं, वैक्सीन डेवलप हो रहे मतलब हुई है, वैक्सीन हम ले भी रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन वहाँ पे काम कर रहे हैं एक्चुअली हाउ दे आर इम्प्रूविंग आवर इम्यून सिस्टम. ओके. सो दैट अगर हम वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे कोरोना वायरस का या फिर नोवेल कोरोना वायरस का, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, उसके बाद ये स्पाइक प्रोटीन है. सो दिस स्पाइक प्रोटीन एक्चुअली these with the help of these spike proteins, these viruses, they are attaching to our cells. हमारे respiratory cells जो है, with the help of that receptor which is present on the membrane of that host cell, तो वहाँ पे ये जो spike protein है उस membrane receptors पे bind हो रहे हैं, and then it is entering in our cells. और बाद में ये उस receptor को bind होने के बाद हमारे जो respiratory cells है उसमें वहाँ पे वो ये enter हो रहे हैं. बाद में एंटर होने के बाद उनका मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे हो रहा है कोरोना वायरस का, एंड देन वी आर सफरिंग फ्रॉम अ कोविड-19 डिसीज. तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस का, दैट इज मेम्ब्रेन प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन. सो दीज आर द एनवेलप प्रोटीन हियर, एंड दीज आर द न्यूक्लियो प्रोटीन बाउंड mRNA, दैट इज आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज अ genetic material of this coronavirus. Okay. The next slide is here. See, this is again the same structure. These are the membrane proteins. Then this is the envelope proteins. These are nucleocapsid bound proteins here. Then genomic RNA, that is genetic material. Then this is a lipid bilayer, and this is the hemagglutinin esterase proteins here. So this is the same structure here. So अभी ये हर एक प्रोटीन का फंक्शन क्या है, जो कोरोना वायरस के जो पार्ट है न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन का फंक्शन क्या है, इट बाइंड्स विथ आरएनए मॉलिक्यूल, दैट इज आरएनए जीनोम, टू मेक हेलिकल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. मेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन एनवेलप प्रोटीन, और इट कैन डिटरमाइन द शेप ऑफ वायरल एनवेलप. एनवेलप प्रोटीन का फंक्शन क्या है,
it can interact with the M protein to form viral envelope, and it is important for the virus infectivity, that envelope protein. And spike protein जो है, they can bind to the host cell receptors to facilitate that entry of this virus into the host cell. ये जो वायरस की एंट्री हो रही है हमारे सेल में, हमारे रेस्पिरेटरी सेल में, ये स्पाइक प्रोटीन की वजह से हो रही है, जो मैंने यहाँ पे दिखाई, ये प्रोटीन, ये स्पाइक प्रोटीन है। तो इसकी वजह से वायरस की एंट्री हमारे रेस्पिरेटरी सेल में वहाँ पे हो रही है, एंड इट इज टारगेटेड बाय द होस्ट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। दूसरा एक जो स्पाइक प्रोटीन है, ये टारगेट प्रोटीन है किसके लिए? हमारे बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं उसके लिए। तो जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में तैयार हो रहे हैं ये कोरोना वायरस के खिलाफ, इसका पूरा कोरोना वायरस को एंटीबॉडीज नहीं बाइंड हो रहे हैं, तो दैट एंटीबॉडीज गेट बाइंडिंग टू द स्पाइक प्रोटीन, सो दीज आर द टारगेटेड बाय होस्ट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। तो ये हो गया कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर, मैंने ब्रीफ में बता दिया यहाँ पे, क्योंकि जनरल प्रोटीन हमें मालूम करना है, बिकॉज इन नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू स्टडी हियर टाइप्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। जो पहले हमने टाइप्स देखे वो अकॉर्डिंग टू द ब्रांड हमने देखे कि मार्केट में कौन से ब्रांड अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली वो टाइप्स हमने देखे। लेकिन अभी जो हम वैक्सीन देख रहे हैं, जैसे कि हमने कुछ वैक्सीन mRNA वैक्सीन देखे, वायरल वैक्सीन देखे, जैसे कि दैट पर्टिकुलर वैक्सीन हियर, तो ये फर्स्ट टाइप है कोविड-19 वैक्सीन का, दैट इज नथिंग बट द mRNA कोविड-19 वैक्सीन। So these mRNA vaccines, these are new type of vaccines, and they protect against the infectious diseases in case of COVID-19 as well as another diseases also. But this COVID-19 vaccine, it is effective only against COVID-19. Okay, and these vaccines, they trigger that immune response. In many vaccines, they use the weakened or inactivated germ, but these mRNA vaccines, they are not using that whole pathogen that is weakened or that is inactivated. Instead of that, there is a use of these mRNA, and this mRNA, it teaches our cells how to make a protein or that spike protein, and that spike protein later on it is presented on the immune cells, and then it is recognized by our immune cells or immune system, and our body produces the antibodies. See, this is the diagram here, how these mRNA vaccines they are functioning in our body. mRNA vaccine जब हम ले रहे हैं, तो how these mRNA vaccines they are improving our immune system or they are producing antibodies. See, this is the simple virus, SARS-CoV-2 virus, और that is novel coronavirus, और यहाँ पे ये स्पाइक प्रोटीन है। तो इस स्पाइक प्रोटीन को जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज आइसोलेटेड। सो यहाँ पे ये जीन समझो हमने आइसोलेट किया यहाँ पे। So this mRNA, it is made with instructions to make viral proteins. So this is a mRNA or messenger RNA molecule, and it has the instructions to make this viral protein, that is spike protein. और उसके बाद this mRNA, it is packaged in the lipid nanoparticles, क्योंकि ये जो lipid nanoparticles है यहाँ पे, these are functioning as a carrier to carry this messenger RNA molecule. So now it is taken in the vaccine. Okay, so these lipid nanoparticles, now they are taken in the vaccine here, that is in liquid form. It is injected in the person or in that pupil, and after injection in the body, so that mRNA, it is released into this cell. See, this is the host cell. So this mRNA, which is taken in form of this vaccine, it will be released in the host cell, and now that mRNA molecule, it is used to make the viral proteins, क्योंकि वही mRNA molecule ये host cell use करेगा, and वो पर्टिकुलर वायरल प्रोटीन्स जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं उसे प्रोड्यूस किया जाएगा। सो दीज आर द स्पाइक प्रोटीन्स हियर। ये जो ब्लैक में दिख रहे हैं ये पूरे स्पाइक प्रोटीन्स है, यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर पे, कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर पे। So that spike proteins are produced here, so that will be presented by these cells here or produced by these cells, and then our body will recognize that क्योंकि ये spike protein जो है ये हमारे body के नहीं है, ये foreign है हमारे body के लिए, so that's why our body will recognize that as a foreign particles and that will produces antibodies. So ये जो Y shape structure दिख रही है आपको यहाँ पे, ये antibodies है which are produced against these spike proteins. So that is nothing but immune response. तो इसी तरह से ये mRNA वैक्सीन जो हम ले रहे हैं वो हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स वहाँ पे डेवलप करेंगे। ओके, दूसरा जो वैक्सीन है दैट वायरल वेक्टर कोविड-19 वैक्सीन। So that viral vector vaccines, these are that vaccines
they use a modified version of a different virus. एक अलग वायरस है वहाँ पे यूज किया जाता है, which is used to deliver that important instructions to our cells or our immune cells. And that benefit of that viral vector vaccines, like all other vaccines, that vaccinated persons, they get protection without having a risk of the serious occurrence of that disease or getting sick with the COVID-19. वायरल वेक्टर अभी हम ले रहे हैं हमारी बॉडी में, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी कोविड-19 हो, मतलब दैट इज द वन मिथ अबाउट दिस कोविड-19 वैक्सीन दैट वी विल सी इन लेटर ऑन. तो ये वैक्सीन जो है, ऐसा नहीं है कि ये वायरल वेक्टर वैक्सीन लेने के बाद या फिर mRNA वैक्सीन लेने के बाद हम कोविड-19 से सफर हो जाएंगे, तो ये बात नहीं है. सो इंस्टेड ऑफ दैट आवर बॉडी recognizes that viral vector vaccines as the foreign particles along with that proteins, and we get our body produces the immune response. See, this is the that how that viral vaccines develop immune system in our body here. So that see that vector or which is not the virus that causes COVID-19, that जो viral vector है और जो आप यूज किया जाता है एज अ वेक्टर करके, वो अलग वायरस होता है. जैसे कि हमने एडिनोवायरस वायरस वहाँ पे यूज किया है. तो हियर so that vector it is a different vector and it will be injected in our body along that COVID-19 proteins or that virus, and that will induce the immune response. Then next है protein subunit. So this is a virus, coronavirus. Then this is a spike protein. Then it is that gene, it is inserted into the bacteria, yeast or any cells. So that particular gene which is responsible for the production of this spike protein, it is inserted into bacteria, in yeast or in animal cells, and that smaller protein fragments that can also be made without the cells using different techniques here or recombinant DNA technology. So here that viral preparation here, then SARS-CoV-2 protein produced by the cells, and these are purified. So these are the purified spike proteins, and then along with adjuvant, these vaccine preparation will be prepared here. Then it is injected in the person, and so that person will produces the that particular cells presenting that spike proteins, and then our body will produces the antibodies. So these are the Y-shaped antibodies produced against these spike proteins here. So that spike proteins will be neutralized. And अगर फ्यूचर में ये कोविड-19 वायरस हमारे बॉडी में एंटर हुआ, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड है, चाहे वो हमने mRNA वैक्सीन ली हो, चाहे हमने वो वायरल वेक्टर वैक्सीन ली हो, चाहे वो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन ली हो, तो हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड रहेगी. और फ्यूचर में अगर कोविड-19 का वायरस, कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर हो गया, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड है that for that COVID-19 infection, and so that antibodies will be there to fight against that coronavirus. अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमारी बॉडी विल बी रेडी, आवर बॉडी विल बी रेडी टू फाइट अगेंस्ट दैट पैथोजन. लेकिन अब हम ये भी सुन रहे हैं और बहुत सारे केसेस आए हैं कि फर्स्ट डोज लेने के बाद दैट पर्टिकुलर पर्सन, इवन दो टेकिंग दैट फर्स्ट डोज, ही इज कोविड-19 पॉजिटिव, फिर भी वो कोविड-19 पॉजिटिव आ रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि अभी ये आप ख्याल में रखिए, अगर आपने वैक्सीन ली है, आपके घर में पेरेंट्स ने वैक्सीन ली है या फिर आप लेने वाले हो, तो ये मत समझना कि आप मैंने वैक्सीन ली है, मुझे कोई मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई सोशल डिस्टेंसिंग मतलब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये मत सोचिए आप, ये पूरे गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए या फिर सोशल डिस्टेंसिंग या फिर जो भी कोई गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, उन सब गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए. क्योंकि वैक्सीन लेने के इमीडिएटली आपके बॉडी में वहाँ पे इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं होता. ओके, उससे कुछ टाइम लगेगा डेवलप होने, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होने के लिए, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए. और अगर उस ड्यूरेशन में अगर आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो यू विल बिकम पॉजिटिव. तो इसीलिए वैक्सीन लेने के बाद भी आपको ख्याल रखना है, खुद का भी ख्याल रखना है. लेकिन जो सेविरिटी है डिसीज की, जो मतलब सीरियसनेस जो है डिसीज का, वो कम रहेगा वैक्सीन लेने के बाद. इसीलिए आपको वैक्सीन लेनी है, एंड वी हैव टू टेक केयर और वी हैव टू फॉलो ऑल गाइडलाइंस. तो ये एक स्लाइड है, फाइजर का जो इफेक्टिवनेस है वो 95% है आफ्टर 2 शॉट्स.
मॉडर्ना का जो है 94% है आफ्टर 2 शॉट्स, देन एस्ट्राजेनेका जो है 76% आफ्टर द फर्स्ट डोज एंड 82% आफ्टर द सेकंड डोज और बोथ डोसेज। जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है जॉनसन वैक्सीन 85% इफेक्टिवनेस और इफिकेसी है। तो दिस इज अबाउट दी दैट टाइप्स ऑफ दी वैक्सीन्स, mRNA वैक्सीन्स, वायरल वेक्टर वैक्सीन्स एंड सब यूनिट वैक्सीन्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द क्लिनिकल ट्रायल्स। अभी वैक्सीन डेवलप होने के बाद डायरेक्टली वहां पे ह्यूमन पे यूज नहीं किया, तो पहले क्लिनिकल ट्रायल्स लिए है। तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है, क्लिनिकल फेजेस क्या है, इन ब्रीफ वी विल सी दैट। तो क्लिनिकल ट्रायल्स, these are the research studies which are performed in people that are aimed at the evaluating the medical, surgical or behavioral intervention, or in this case that is COVID-19 vaccine. Okay, एक तो एक कोई ड्रग रहेगी, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट रहेगी, या फिर कोई बिहेवियरल इंटरवेंशन वहाँ पे रहेगा, डिस्कवरी रहेगी जो डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग पे नहीं यूज की जा सकती, एनिमल पे यूज की जाती है, या फिर इन केस ऑफ दिस कोविड-19 दिस आर मतलब कुछ ह्यूमन पे ट्रायल्स लिए गए हैं, डायरेक्टली जनरल पॉपुलेशन में या फिर लार्ज पॉपुलेशन में उसे यूज नहीं किया। तो स्मॉल ग्रुप पहले यूज किया है, जिसे हम क्लिनिकल ट्रायल्स कह सकते हैं या फिर क्लिनिकल फेजेस कह सकते हैं। सो विच आर दैट क्लिनिकल फेजेस और ट्रायल्स। तो द phase 1 he test an experimental treatment on a small group of healthy people, and that group includes 20 to 80 pupils. What is the purpose here? To judge or to find out its safety and its side effects and to find the correct drug doses. मतलब ड्रग डोज कितना देना है, या फिर सेफ्टी है, कुछ साइड इफेक्ट्स है या नहीं, ये चेक करने के लिए 20 to 80 पीपल्स पे, हेल्दी पीपल्स पे ये ट्रायल्स किए जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ट्रायल 1 या फेज 1। ओके, एंड फेज 2 it uses more pupils, that is about 100 to 300, and the main purpose in phase 1 it is on the safety, and in case of phase 2 it is on effectiveness. फेज 2 पे क्या हमारा पर्पस है, मेन पर्पस क्या रहता है ये क्लिनिकल ट्रायल्स में या फेजेस में, कि ये जो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं तो ये इफेक्टिव है या नहीं है। क्योंकि अगर इफेक्टिव है तो लार्ज प्रोडक्शन, मतलब लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करने में कुछ फायदा होगा वहाँ पे, या फिर जो वेस्टेज मतलब पूरा वहाँ पे वेस्टेज हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ वैक्सीन इफेक्टिव है नहीं, क्योंकि मेन पर्पस हमारा है कि वो जो भी वैक्सीन हम तैयार कर रहे हैं या फिर तैयार की है, तो उस वैक्सीन ने वो जो डिसीज हो रहे हैं उसे प्रिवेंट करना चाहिए। तो ये मेन पर्पस है। तो इसका मतलब है हमें उसका इफेक्टिवनेस चेक करना है। तो दैट इज डन इन सेकंड ट्रायल और फेज 2 ट्रायल। ओके, and then this phase it aims to obtain the preliminary data whether the drug works in people who have a certain disease. पहले ट्रायल में क्या किया था, पूरे हेल्दी पीपल लिए थे, लेकिन सेकंड ट्रायल में, सेकंड फेज में क्या किया जा रहा है, एक तो इफेक्टिवनेस उसका चेक किया जा रहा है, और उसके बाद कुछ पीपल में ऐसे मतलब पीपल्स में दिया जा रहा है वी हैव सर्टेन डिसीज और कंडीशन। ओके, क्योंकि वो भी चेक करना है कि अगर कुछ डिसीज पर्सन में ये वैक्सीन दिया तो उसका कुछ मोर साइड इफेक्ट है क्या। तो ये सेकंड फेज में चेक किया जाता है। एंड दिस ट्रायल्स आल्सो कंटिन्यू टू स्टडी द सेफ्टी, देन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स, देन इट कैन लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स। एक्चुअली ये ड्यूरेशन है, कोई भी ड्रग अगर आप डिस्कवर कर रहे हैं कंपनी में, इंडस्ट्री में या रिसर्च इंस्टीट्यूट में, कोई भी वैक्सीन वहाँ पे डिस्कवर कर रहे हैं इंडस्ट्री में या रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो वैक्सीन डेवलपमेंट में एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 साल तो लगते हैं। तो इसीलिए मतलब जो पहले लोग वैक्सीन लेने को डर रहे थे, तो बहुत सारे पीपल मतलब लोगों को लग रहा था कि इतने जल्दी कहीं वैक्सीन तैयार होती है क्या, लेकिन जल्दी वैक्सीन आ गई है मार्केट में। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ट्रायल्स उन्होंने अधूरे छोड़ के वैक्सीन मार्केट में ला गई, ऐसा नहीं है। तो पूरे के पूरे ट्रायल हो गए, और मतलब ये पूरे ट्रायल होने के बाद ही FDA फूड एंड ड्रग दैट इज वहाँ पे ड्रग या फिर वो वैक्सीन वहाँ पे अप्रूव की जाती है। ओके, तो ये हो गया फेज 2। देन फेज 3 ट्रायल इट गैदर्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, एंड इट स्टडीज द डिफरेंट पॉपुलेशन एज वेल एज डिफरेंट डोसेजेस यूजिंग द ड्रग इन कॉम्बिनेशन विथ अदर ड्रग्स। मतलब ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि चलो वैक्सीन ली या फिर कोई ड्रग ली
और पेशेंट ने बाकी की ड्रग उसने लिए तो उसका फिर वो रिएक्शन हो गया और पेशेंट की डेथ वहाँ पे हो गई। तो ये भी चेक करना पड़ता है एंड दैट कैन बी डन इन दी phase 3 trial. Okay, the number of subject usually ranges from several hundred to about 3000. सेकंड फेज में जो पर्सन्स वॉलंटियर्स जो इंक्लूड किए गए थे वो थे 100 to 300। फर्स्ट ट्रायल में थे 20 to 80, लेकिन थर्ड फेज में फेज 3 ट्रायल में जो है वो है 100 to about 3000 persons. Okay, and if the FDA agrees that trial results are positive, then it will approve the experimental drug or that device or that vaccine. Okay, and then that will come in the market. Then phase 4 trial, it is for drugs or device which takes place after the FDA approves their use. चलो FDA ने अभी बोल दिया कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैक्सीन अभी पर्सन्स पे जनरल पॉपुलेशन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में फेज 4 किया जाती है, ट्रायल 4 किया जाता है, एंड दैट इज फॉर टू चेक ड्रग्स इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी that are monitored in large diverse population. अलग अलग पॉपुलेशन में लार्ज पॉपुलेशन में दिया जाता है एंड समटाइम्स दैट साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग दैट नॉट बिकम क्लियर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लार्ज पॉपुलेशन पर यूज करने के बाद ही जो भी साइड इफेक्ट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये फेज 4 में आ जाता है, ट्रायल 4 में आ जाता है। देन नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। क्या क्या इफेक्टिवनेस है, तो ये कुछ एक स्लाइड मतलब ब्रीफली आई एम सेइंग हियर, तो ऐसे कुछ इफेक्टिवनेस हमने बता मतलब पहले स्लाइड में मैंने बताया। ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का या एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है, दैट इज अ वायरल वेक्टर वैक्सीन और इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस। 2 डोसेस विल बी रिक्वायर्ड हियर एंड इफेक्टिवनेस जो है दैट इज 60 to 90%। रेगुलर स्टोरेज जो किया जाता है रेगुलर फ्रीज टेम्परेचर में। देन मॉडर्ना का mRNA और दैट इज अ पार्ट ऑफ वायरस जेनेटिक कोड, 2 डोसेस, इफेक्टिवनेस जो है वो 95% है एंड इट इज प्रिजर्व्ड एट -20 डिग्री सेल्सियस अप टू 6 months. देन फाइजर बायोटेक RNA वैक्सीन, mRNA वैक्सीन, 2 डोसेस विल बी रिक्वायर्ड, देन इफेक्टिवनेस इज 95%. ओके, देन प्रिजर्व कैन बी प्रिजर्व -70 डिग्री सेल्सियस. देन गैमेलिया स्पुटनिक वी वायरल वेक्टर वैक्सीन, 92% इफेक्टिवनेस, देन रेगुलर फ्रीज टेम्परेचर। एंड कोविशील्ड और कोवैक्सीन का जो है, कोविशील्ड का जो इफेक्टिवनेस है वो 72% है एंड कोवैक्सीन का जो है वो 78% है। ओके, तो these are mRNA COVID vaccines are highly effective. mRNA COVID vaccines, these are highly effective in preventing infections in real world conditions. Okay, so here nearly 4,000 healthcare personnel, first responders and essential workers, so they were tested weekly for the virus that causes COVID-19. And those who were fully vaccinated means here after taking both doses, so 90% less likely to get infected. Okay, और सेवेरिटी भी वहाँ पे कम रहती है। नेक्स्ट है, अभी वैक्सीन वहाँ पे मार्केट में आ गई, अभी ये भी हमें मालूम हुआ कि कौन से इफेक्टिव है, कौन से कम इफेक्टिव है, कौन से ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, फिर भी जो पीपल्स है, कॉमन पीपल्स है, कुछ एरिया में, कुछ सिटीज़ में, कुछ गाँवों में, वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की। सो दैट इज द मिथ्स अबाउट दैट कोविड-19 वैक्सीन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इफ आई हैड दैट कोविड-19 एंड रिकवर्ड, देन आई डोंट नीड टू गेट द वैक्सीन। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अभी मुझे कोविड हुआ था और इसीलिए मुझे अब वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्चुअली रॉन्ग है, ये एक मिथ है एक प्रकार का। तो एक्चुअल फैक्ट क्या है कि ड्यू टू द सेवियर हेल्थ रिस्क अबाउट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, सो रिकवर होने के बाद भी बहुत हमने सुना है कि बहुत लोगों को री इन्फेक्शन हुआ है, मतलब फिर से इन्फेक्शन वहाँ पे हुआ है। तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि चलो अभी कोविड हमें एक बार होके गया है तो अभी वैक्सीन की जरूरत नहीं है और फिर से मुझे कोविड नहीं होगा। तो ये रॉन्ग है। एक्चुअल फैक्ट ये है कि री इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकता है, इसीलिए टू प्रिवेंट दैट री इन्फेक्शन वी हैव टू टेक द कोविड-19 वैक्सीन। ओके, नेक्स्ट है, see these are the again some myths and fact here. So these vaccines, these are so that is people they are saying that vaccines are occurring or now available in market in shorter duration. So इसका मतलब ये नहीं कि वो इफेक्टिव नहीं है,
शॉर्टर ड्यूरेशन में अवेलेबल हुई है, फिर भी मतलब वहाँ पे इफेक्टिवनेस है, एंड दैट इज डन in many pupils. Then the vaccines were made too quickly. Series 1. So I can get COVID-19 from the vaccines. तो ये एक मिथ है कि अगर मैंने वैक्सीन ली मतलब ले रहा हो तो मुझे कोविड-19 का इन्फेक्शन या फिर डिसीज वहाँ पे हो सकता है. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वैक्सीन की डेफिनेशन ही ये है कि दीज आर द किल्ड और अटेन्यूएटेड सस्पेंशन ऑफ द पैथोजन. और हमने टाइप्स में देखा है और वायरस के इंट्रोडक्शन में देखा, वैक्सीन के इंट्रोडक्शन में हमने देखा है कि ये जो वायरस हम हमारे बॉडी में ले रहे हैं, वैक्सीन हम ले रहे हैं, तो ये किल्ड है, इनएक्टिवेटेड है. इसकी वजह से इनएक्टिवेटेड या किल्ड होने की वजह से वो डिसीज कॉज नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज कर सकती है. तो इसीलिए अगर आपके मन में या फिर आपके फ्रेंड्स के मन में, आपके पेरेंट्स के मन में ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वैक्सीन लेने के बाद कोविड-19 हो सकता है, तो उसे समझाइए, अच्छी तरह से समझाइए कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको साइंटिफिक नॉलेज अभी मिल रहा है या फिर पहले से है. तो इसीलिए आप उन्हें समझाइए कि ऐसा वैक्सीन लेने से कोई कोविड-19 वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि इसमें जो वैक्सीन हम ले रहे हैं ये पूरे किल्ड है, इनएक्टिवेटेड है या फिर जीन्स है, mRNA है. ओके, देन द वैक्सीन्स विल चेंज माय डीएनए. अगर ये भी इम्पॉसिबल है, ऐसा मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम वैक्सीन ले रहे तो वो वैक्सीन मेरा डीएनए चेंज कर जाएगा, फिर मेरा पूरा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, मैं अभी ह्यूमन हूँ, फिर बाद में वो कुछ एनिमल बन जाऊंगा कोई भी. तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो दैट इज दैट कोविड-19 वैक्सीन डू नॉट चेंज आवर और इंटरैक्ट विथ योर डीएनए इन एनी वे. देन साइड इफेक्ट्स फ्रॉम द वैक्सीन्स आर सेवियर. तो साइड इफेक्ट सेवियर नहीं है, वो माइल्ड इन्फेक्शन है, माइल्ड साइड इफेक्ट्स है, चाहे वो पेन रहता, रेडनेस रहता, स्वेलिंग रहता या फिर फीवर और बॉडी पेन. ओके, then I have food allergies, which means I will have an allergic reactions to the vaccines. So that allergic reactions to the food, like or for example eggs or peanuts, are not linked to the COVID-19 vaccines. There is no any linking between these allergic reactions to the food or to the COVID-19 vaccines. And if you have a history of severe allergic reactions, अगर आप पहले से कुछ severe allergic reactions है related to the vaccines, मतलब पहले कोई हमने वैक्सीन ली है, पहले भी जब हम चिल्ड्रंस थे तो हमारे पेरेंट्स को पता रहता कि ये वैक्सीन लेने के बाद उसे ये रिएक्शन आई थी, तो आपको मतलब वो हिस्ट्री आपको मालूम रहती. तो एट दैट टाइम यू शुड गेट मतलब यू हैव टू कंसल्ट विथ योर डॉक्टर्स, तो दैट वैक्सीन्स विल मेक मी इनफर्टाइल. तो ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये रूरल एरिया में ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वैक्सीन मतलब दे रहे हैं तो बाद में इनफर्टाइल हो जाएंगे, मतलब चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे. ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है. सो दैट कोविड-19 वैक्सीन्स these are not likely to present a risk if you are trying to become pregnant in future, now or in future, in case of ladies or for the but there is no decreasing sperm count or like that. So these are the myths and facts about the COVID-19 vaccines. So that prevention from getting, these are also the prevention from getting very ill. So this is very important. If you are taking that COVID-19 vaccine, तो अगर आपने कोविड-19 वैक्सीन लिए हैं या फिर फ्यूचर में ले रहे हो मतलब आपको लेना चाहिए. ओके, तो आपका सोसाइटी में आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा क्या. सो खुद को तो प्रिवेंटिंग यू विल प्रिवेंट फ्रॉम द गेटिंग वेरी इल. उसके बाद यू प्रोटेक्ट अदर्स, आपके सराउंडिंग जो भी पीपल्स है उसको भी आप प्रोटेक्ट करेंगे. इसका मतलब ये नहीं कि आपने वैक्सीन लिया तो उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा. दिस इज नॉट इन दिस, यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग इन दिस वे. तो आपने वैक्सीन ली इसका मतलब है आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो रहे हैं, या और उसके बाद आपके बॉडी में अगर फ्यूचर में इन्फेक्शन भी हुआ है तो वायरस वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेगा. इसका मतलब है आपसे मतलब आप दूसरे पर्सन को या फिर कम्युनिटी में वो डिसीज स्प्रेड नहीं करोगे वहाँ पे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड एंड you are having that antibodies, so you are not carrier for that virus. Then prepare for the unknown. COVID-19 can have serious life-threatening complications, all of you know that, and there is no way to know how that COVID-19 will affect you. If you get sick, then you could spread the disease to friends, family and others around you. Okay? Then boost your immune system. आपकी immune system भी वहाँ पे बढ़ जाएगी
कोविड-19 वैक्सीन लेने की वजह से, एंड एट द सेम टाइम so you have to wear that mask, you have to follow the social distancing, and you have to wash your hands with sanitizer or with soap. Okay, so that are the benefits. So here we have finished about that, all about that types of vaccines, different types of vaccines, how that vaccines protects our body, or COVID-19 vaccines as per the brand names or as per the preparations here. Then we have seen myths and facts, and we have also seen the that detailed mechanisms or structure of the coronavirus here. So thank you for hearing. Okay, so Hello. thanks a lot, sir. That was indeed a very great session with you. So if any of you have any question, please type it in the comment Any box or question you from can unmute participants? yourself. Hello, Hello. hello, sir. I have one doubt. Mhm. Sir, it is seen in the case of all the vaccines that they are administered as intramuscular in the deltoid Mhm. muscles of the hand. So, Mhm. why exactly they are administered intramuscularly, and if it is given by some other route, then how it will affect the vaccine efficacy? No, just we have seen that in previous slides. If you are there is a two reasons will be there. One is that vaccine it goes properly to the target cells, we can see here, and another one is here that we have seen in the previous slides. If we are taking in the other parts of the body, then the side effects will be more severe, or there more symptoms will be there, or more side effects will be there. And in case of intramuscularly, these side effects these are less. There is a pain will be there at that location only, or there will be redness or swelling will be there. But in case of if you are taking by another routes here or in other parts of our body, then their side effects will be more, or there will be tiredness, then fever, or more effects, side effects will be there. That is the reason one. Okay, sir. Sir, and also one more thing. A few Hmm. cases are seen recently which are Hmm. reported due to the infection of mucormycosis, which is a black Yes. fungal disease. Hmm. So, Hmm. there are various speculations that it is causing due to the vaccine, or maybe the No, no, no. coronavirus infection is again It is not relapsing. causing. It is not causing due to the vaccine, but that mucormycosis is more common in COVID-19 patients after recovery. Hmm? And that is reason here that because there are whatever the drugs they are using here, for example, in some cases, not all drugs here I am telling, but some drugs they are that persons they are becoming weak, and actually that mucormycosis or that black fungus, it is a opportunistic pathogen. When our immune system now become, because after recovery from COVID-19, that person they are becoming weak, okay, and therefore there is there are more chances to develop that mucormycosis. Okay, sir. Thank you so much, sir. It was indeed an Okay, enlightening session. okay, thank you, thank you. Sir, there is another Hello. question in the comment section, Hmm. which is Hmm. the vaccine effective to the different strain of coronavirus? Yes, yes, that study is also now discovered that that vaccines these are effective against double mutant also. डबल म्यूटेंट के खिलाफ भी ये इफेक्टिव है, that is Covishield or Covaxin. So there is no problem. So these are effective against that double mutant or that variant also. हाँ, Hello. any को हाँ हेलो, Hello. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. Hello. सर हम बिहार से बोल रहे हैं. हाँ बोलिए. मेरा एज 40 साल है और डायबिटीज के पेशेंट भी हैं, तो क्या वैक्सीन लेना मेरे लिए सर सेफ होगा? 300 to 400 रहता है सर ये. नहीं कोई बात नहीं ना, वैक्सीन अभी मतलब आप जब भी वैक्सीन लेते हो हैं, जी तो जी पहले आपका जो भी मतलब फैमिली डॉक्टर है या फिर कोई भी डॉक्टर, तो उनसे कंसल्ट कीजिए, हैं, जी जी. हाँ दैट विल बी बेटर. ओके सर. तो ऐसे ही क्योंकि जाके नहीं ले सकते हैं?
नहीं नहीं, डायरेक्टली मत जाओ आप, क्यों, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंट्रोल में शुगर रहे तो वो अच्छा रहेगा। जी, और फिर लेकिन भी मतलब 300 अबव रहता है सर। हाँ, डायरेक्टली अगर आप डायरेक्टली मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली, इफ यू विल कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, दैट विल बी बेटर। ओके सर। तो सर कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता सर डायबिटीज नहीं नहीं, पेशेंट साइड को? इफेक्ट वही बोले मैंने। साइड इफेक्ट क्या हो जाएगी, मतलब बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट ने वैक्सीन ली है, जी, जी, एंड साइड इफेक्ट्स मतलब वैसे ये साइड इफेक्ट जो हो रहे हैं, मतलब जो पेन है, फीवर है, बॉडी पेन है, हैं? या फिर जी, स्वेलिंग है, जी, चिल्स है, तो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन्स आल्सो। अभी जी, कुछ जी, कुछ मतलब एक्सपीरियंस ऐसे भी है कि वैक्सीन लेने के बाद उन्होंने कोई भी साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। जी, जी, और जी, कुछ लोगों को थोड़ा सा 3-4 दिन मतलब फीवर रहा है, बॉडी पेन रहा है। कुछ लोगों को, जी, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वैक्सीन लेने के बाद, जी, एक ही दिन मुझे बॉडी पेन था और फीवर था। फीवर अच्छा, पूरा दिन भी नहीं था, खाली कुछ आवर्स था वो। जी, जी। दैट थैंक यू डिपेंड्स ऑन सर। पर्सन। थैंक, ओके। ओके, ओके, थैंक यू सर। नो क्वेश्चन। हेलो। Is there any more questions? You can आई थिंक ask, नो, sir. नो मोर क्वेश्चंस आई थिंक। Uh, Hello, sir. हाँ, हेलो। Sir, how exactly the vaccine protection efficacy is determined, and how it will provide a immunity, or it will be effective for a long run? So it is said that after 6 months or 8 months, again some booster dose should be taken to increase the immunity. यस यस But यस। what exactly it is done? नहीं, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि जो पहले स्लाइड्स हमने देखे हैं कि एक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड में जो वैक्सीन वहाँ पे मतलब होते हैं, तो उसमें कुछ वैक्सीन में इम्यूनिटी शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रहती है, कुछ में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहती है, बराबर है। तो एक वैक्सीन लेने के एक या दो डोज लिए इसका मतलब ये नहीं कि चलो अभी ज़िंदगी भर हमें वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें कोविड कोरोना वायरस के डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो Yes, क्योंकि हर एक का एक लाइफ स्पैन में वो वहाँ पे रहता है बॉडी में, तो इसलिए आफ्टर सम टाइम्स व्हाट एवर दैट एंटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस, दैट गेट न्यूट्रलाइज्ड ऑटोमेटिकली। ओके, तो अगर एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में नहीं रह रहे तो इसका मतलब है तब जब कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो डेफिनेटली वी विल गेट सफर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिसीज। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि बूस्टर डोसेज लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में मतलब कम हुई थी, बूस्टर डोज लेने की वजह से वो फिर से वहाँ पे बढ़ जाएगी। दैट इज द रीजन बूस्टर डोज लेने के पीछे। yes, sir. Thank you so much. so, sir, we have another question, that is, what happened if I take first dose of Covishield and then second dose of Covaxin or vice versa? वैसे मतलब अभी तक कुछ वैसे बताया गया तो नहीं है, क्योंकि चलो अभी एक मतलब जो स्टडी हम बोलते हैं, तो स्टडी में ऐसे कुछ मैंने तो नहीं पढ़ा है अभी तक, तो कि चलो अभी पहला डोज कोविशील्ड का लिया और दूसरा कोवैक्सीन का लिया और उसके बाद पेशेंट को ये एक्सपीरियंस फील हो गया। तो ऐसा मतलब अभी तक कुछ किसी का एक्सपीरियंस भी नहीं आया पढ़ने में, और वहाँ पे कुछ स्टडी भी ऐसे कुछ अभी तक तो मुझे नहीं मिली कि चलो एक डोज लेने के बाद एक कोविशील्ड का लिया और दूसरा कोवैक्सीन का लिया और वाइस वर्सा। तो ये तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन ये मतलब स्टडी हुआ है या फिर बोल रहे हैं कि कोई भी, चाहे वो डॉक्टर्स हो या रिसर्चर्स हो, कि पहला डोज अगर आपने कोविशील्ड का लिया है तो सेकंड डोज भी आपने कोविशील्ड का ही लेना चाहिए। पहला अगर आपने कोवैक्सीन का लिया है तो सेकंड भी डोज आपने कोवैक्सीन का ही लेना चाहिए। ओके। Yeah, sir. Thank you, sir. And another question is that, good evening, sir. Will you please tell about 2-deoxyglucose trials against SARS-CoV? ओके, उसे अभी ये 2-3 दिन में ही वो न्यूज आ रही है, जो DRDO का जो नया ड्रग है? तो उसके बारे में मैंने भी अभी पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं मतलब फ्रैंकली बोल रहा हूँ आपको। तो
एक काम करिए, आप थोड़ा सा सर्च करिए उस पर, क्योंकि मैंने उसमें उसके बारे में अभी पढ़ा नहीं ज़्यादा, क्योंकि अभी Okay, 2-3 दिन sir. पहले ही Yeah. वो अप्रूव हुई है ड्रग, DRDO ने वो रिसर्च की है. ओके. Okay, sir. Yeah. So there is another question, that is, sir, please information of black fungus. ब्लैक फंगस पे अभी इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो अभी एक क्वेश्चन पूछा था केदार जोशी ने. ओके. तो इसमें ये जो इन्फेक्शन हो रहा है, एक्चुअली ये जो ब्लैक फंगस या जो डिसीज है म्यूकरमाइकोसिस जिसे हम कहते हैं, ब्लैक फंगस इट इज एक्चुअली अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन. मतलब अगर हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी है तो वो पैथोजन हमें कुछ नहीं करेगा. ओके. लेकिन अगर इम्यून सिस्टम या फिर हमारी रेजिस्टेंस पावर अगर कम हो रही है तो डेफिनेटली जो हमारी इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से ये जो पैथोजन हमारे बॉडी में, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक है जिसे हम संधि साधु बोलते हैं, अगर हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो रही है इसका मतलब उसे चांस मिल रहा है, उसे मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि चलो अभी ये इसकी इम्यून सिस्टम वीक हो गई तो अभी हम इस पे बॉडी के अटैक कर सकते हैं. तो ये ब्लैक फंगस की वजह से, मतलब ब्लैक फंगस ही रिस्पॉन्सिबल है म्यूकरमाइकोसिस के लिए, जिसमें स्किन डिसीज भी वहाँ पे होता है, आईज में भी प्रॉब्लम हो जाता है. मतलब दैट पर्टिकुलर पर्सन हु गेट्स इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस म्यूकरमाइकोसिस गेट ब्लाइंड एंड माउथ में भी वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन वहाँ पे होता है. तो ये म्यूकरमाइकोसिस इन शॉर्ट. Okay, sir. Thank you. And there is another question from Kedar Joshi. That is, in some cases, it is seen that non-diabetic patients with COVID-19 infection have hyperglycemia and sudden insulin spike. So why is it so? So though it is non-diabetic, but sometimes that may be the reason. क्योंकि अगर कोविड-19 या फिर डिसीज समझो डायबिटिक नहीं है, फिर भी एक तो टेम्परली वहाँ पे जो मतलब इंसुलिन का सिक्रेशन हो जाता है वो कम ज़्यादा हो सकता है, और अगर इंसुलिन का सिक्रेशन वहाँ पे कम हो रहा है तो समटाइम्स दैट पर्सन विल बिकम हाइपरग्लाइसेमिक, या फिर इन सम अदर डिसीजेस आल्सो, सो दैट pancreas or that insulin producing cells that will affect or get affected, and that's why the secretion of insulin will be less. So the sugar or control of sugar that cannot be there, so that's why that particular person will become hyperglycemic, or the sugar level will be more. Okay. Yeah, thank you, sir. So do we have any more questions? You can type or you can unmute yourself. Any question? I think no question. Okay, we can finish now. Yeah, okay, sir. Then thanks a lot, guys, everyone who have joined, and thank you, Shantosh sir, for giving this great insight about the various vaccines and its effectiveness. So it's been a great time, and thank you, everyone. So yeah, you may leave. Thank you all participants, and thank you organizer Devmita, or I can say Dr. Microbiologist. Thank you. Thank you, sir. Sir, please video send. Yeah, you will receive. Okay, that video will be on YouTube. Yeah, yeah, it will be on YouTube. Thank you. Can I leave now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Yeah, thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you.